on. Look at this picture is telling that the sellers are exhausted, right? Unable to break their own wick and exhaustion candle appeared. Need to market reverse back. We will check back that is there any order block, any support, any demand? If yes, market needs to be accumulate and then it needs to go up, right? But Yeah. when market wants to go up, market needs four phases. This is which phase? Down. Expansion. Oh, this is expansion. Sorry. Yes. Market needs to create a range, right? Market now where it needs to go up, we are expecting up, needs to break down, and then needs to go up. Okay, so the movement, for example, if you want that expansion, again expansion, very rarely you will find in the market. Okay, if you are thinking that one candle reversal or two candle reversal, it mostly happened. But reversing of the trend, it needs to complete the phases, right? So if you check what happened here, it's going up. Yes. Range, manipulation, and now where market is going? In the up direction. Okay, and which level is followed? Look at here. When the price creates a low, now look that this liquidity is taken, not taken. If not taken means this time market will never support this level. Market will break to take the liquidity. The liquidity is taken, yes, and now market is moving up. Everything here, logic with concept market is moving. Okay, because we are in a 1 hour hourly movement. So market, what it creates it? It creates a range, right? Mhm. And then what we expect after range? This market creates a range. What we expect after the range? Manipulation. Then market creates expansion, means a distribution. Same thing here. We expected, and the market is following that same thing. Now, how you can confirm? You need to confirm from the higher time frame. And the H4, if this order block will be taken from the H4, H4 will tell you that this where from the market will go up. Now look at here. As per the H4 order block, if we see that market is still in this area, and here the same concept happened here, right? So unable to break, then immediately market goes up. So sometimes we can check the higher time frame. Here you can see the range is broken. This candle is broken in upper direction. This will be the fake direction. Market needs to move down. Same thing. So we will focus the higher time frames as well as if we are using the hourly time frame. Okay. तो मेरी कंफ्यूजन यहाँ पे था कि आपकी go back कंफ्यूजन जो है ना to लिखा हुआ है कि बट स्टिल इट्स कंटिन्यू एग्जॉशन में भी आपने कहा कि हाँ कंटिन्यू, तो मैंने आपको उसका जवाब दे दिया ना। हाँ। अच्छा, तो इसका मतलब कि ये 1 मिनट चार्ट में भी मुझे जहनी देखो, तौर पे आप देखो जाना। ना, आप देखो, ये सपोर्ट है, मार्केट यहां से नीचे की तरफ आ रही है, राइट? ठीक है। अब आप कह रहे हैं सपोर्ट है तो मार्केट को उसको ऐसे उड़ना चाहिए, ऐसे तो नहीं उड़ेगी ना मार्केट। हाँ, हम्म। वैसे तो नहीं होगा। नहीं उड़ेगी तो कैसे करेगी? मार्केट के कितने फेजेस होंगे? मार्केट का फेज है कि भाई मार्केट रेंज बना सकती है, मार्केट रिवर्सल भी दे सकती है, मार्केट रिट्रेसमेंट भी दे सकती है। कंटिन्यूशन। यहाँ पर तीन ऑप्शन मिल सकते हैं ना, रिवर्सल भी नहीं, हो ज्यादा सकता मैं है। वो सब समझा, मैं वो सब समझ गया, लेकिन मेरी कंफ्यूजन यहाँ पे था कि वीक क्रॉसिंग नहीं हुई ना, तो फिर तो विक क्रॉसिंग कॉन्सेप्ट 100% है क्या? नहीं ना, अच्छा। 100% तो वो नहीं अच्छा। होगा ना। मतलब देखो कि विक क्रॉसिंग का मतलब है आपको इन्फॉर्मेशन मिली, क्या इन्फॉर्मेशन मिली? हाँ, कि कि वीक प्राइस हो इज गया। एग्जॉस्टेड, प्राइस इज हाँ। एग्जॉस्टेड। अब आपके मन में यह है कि
immediately it will be reverse back, और after time it can be reverse back. ठीक है, देखो अगर आप इमीडिएट की बात करोगे तो फिर आपको लोअर टाइम फ्रेम पे 1 मिनट पे देखना पड़ेगा, क्योंकि आप एक एक कैंडल को आप क्या करोगे, ट्रेड करोगे। ठीक है, वहां पर एक कैंडल को ट्रेड करोगे तो एक कैंडल अगर वो नहीं आती तो दूसरी आ जाती है, तो उसमें ट्रेड रिकवर हो जाता है। अभी आप 1 घंटे को देख रहे हो, इट मीन्स यू आर लुकिंग फॉर द फॉरेक्स मार्केट। फॉरेक्स मार्केट की मूवमेंट का असूल थोड़ा सा डिफरेंट होगा बाइनरी की मूवमेंट के हिसाब से। बाइनरी की मूवमेंट तो हम एक कैंडल के ऊपर फिर एनालिसिस किया, एक कैंडल का रिजल्ट आया, बस बाकी कहानी खत्म, मार्केट कहाँ जा रही है हमें उससे कोई वास्ता नहीं है। एक ट्रेड हमारा विन हुआ और हमने उससे फायदा हासिल किया। लेकिन आप अगर हावरली या बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे तो फिर सारे असूल को मिला के चलोगे, मार्केट असूल के हिसाब से चलेगी, इमीडिएटली मार्केट मूव नहीं करेगी। ठीक है। आपके जो थ्योरीज मैंने अप्लाई किया आज सुबह से, हम्म। वो है कि जैसे टुडे इज द ओपनिंग डे एंड इट्स मंडे, तो आज एक्यूमुलेशन है। जी सो तो बेस्ड ऑन दैट मैंने बाय ट्रेड्स लिए इस पे 1 आवर आवरली में, एंड इट्स नहीं, गोइंग गुड। अक्यूमुलेशन में ट्रेड तो नहीं करते ना फिर, अगर उसके हिसाब से आप बाय ट्रेड कैसे कर रहे हैं, मतलब कि बाइनरी में आप एक क्योंकि घंटे की आज कैंडल पे आज ट्रेड कर रहे हैं। रेंज होगा ना, there's going to be a जी, range. अब मार्केट क्या कर रही है देखें, आज के दिन मार्केट कहाँ से स्टार्ट हुई है, यहाँ से स्टार्ट हुई है 24 तारीख से ना। नहीं, हाँ मार्केट ये 4 घंटे की मार्केट है, हम 1 घंटे के ऊपर जाते हैं। ठीक है। हाँ, ठीक है, अब 1 घंटे का मतलब 27 तारीख को मार्केट ओपन हुई है। ठीक है, ये है, तो मैंने यहीं से बाय ली यहाँ पे नीचे आपने से। बाय लिया। हाँ, ठीक है, यहाँ पर आपने बाय लेना चाह रहे, ऊपर की तरफ जाएगी मार्केट। ठीक है, क्योंकि रेंज कैसे बनती है, एक लेवल ऊपर की तरफ होती है, एक लेवल नीचे की तरफ होती है, नीचे की मार्केट तरफ उसी के होता है। अंदर क्या करती है, रहती है। 2 पॉइंट्स, हाँ। तो अब जैसे कि हमारे पास ये रेंज है, ठीक है, हम्म, ये रेंज का हाई है। ठीक है, और हम्म, अभी मार्केट ने क्या बनाया, आज के दिन ये लो बनाया, ये रेंज का लो होगा। ठीक है, अब मार्केट इसी के अंदर रेंज करती रहेगी, इससे ज्यादा ऊपर की तरफ नहीं जाएगी आज के दिन, इसी के अंदर हाँ रहेगी। एग्जैक्टली। ठीक मैं है। हम्म। मेरे जहन में यही था कि आज यहीं जी पे जी, अब तो प्राइस आपने बाउंस करेगा। कितने घंटे का ट्रेड किया है। नहीं, ये डेमो में है तो नहीं नहीं, मतलब कि मैं मुझे ये बताएं कि आप फॉरेक्स में ट्रेड किया या फिर आपने बाइनरी ऑप्शन में जस्ट ट्रेड किया है। नहीं नहीं, ये मैंने फॉरेक्स में किया, ये हम्म। मेटा फाइव। फॉरेक्स में ट्रेड करने के लिए आप मुझे बताइएगा, फिर मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा कि फॉरेक्स की एंट्री कैसे होगी और बाइनरी की एंट्री कैसे होगी। ठीक ओके। है ना, तो इन दोनों की एंट्री में फर्क होगा। अब यहाँ पर देखिए, अच्छा। जैसे मार्केट एग्जॉस्ट हुई है ना, उसके बाद फिर बायर ने क्या किया है, इनडिसाइड किया है। ठीक है, हम्म, फिर सेलर ने इनडिसाइड किया, फिर बायर ने अगेन ये इनडिसाइड करते गए, मतलब कि एक कैंडल के अंदर 3 कैंडल कम से कम बन गई तो रेंज बन गई, कंसोलिडेशन राइट। बन गई। कंसोलिडेशन। तो फिर उसी का लिक्विडिटी असल में पीछे भी देखना पड़ता है कि जब फॉरेक्स मार्केट चलती है ना, तो फॉरेक्स में कौन होता है, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर होते हैं और रिटेलर्स होते हैं। ठीक है, तो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर जब तक लिक्विडिटी स्वेप नहीं करते तब तक मूव नहीं करते। अब लिक्विडिटी स्वेप का कैसे होता है, अब देखो कि अगर यहां पर आपको बात समझ में आए कि ये जो मूवमेंट है ना, इसको हम लिक्विडिटी स्वेप कहते हैं। फिर लिक्विडिटी स्वेप के बाद स्ट्रांग मूवमेंट होती है, जैसे ये गिरी नीचे मार्केट। अब यहां पर लिक्विडिटी स्वेप हुई है इस पॉइंट की, तो स्ट्रांगली मार्केट ऊपर की तरफ गई है, इट मींस दैट इसके अंदर इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर मौजूद है। ठीक है, तो जब भी मार्केट की मूव होती होगी, सबसे पहले क्या होगा मार्केट का, एक लिक्विडिटी स्वेप होगा। अब जैसे कि आपको मैंने ये कॉन्सेप्ट बताया था, अगर आपको याद हो तो, एक ही क्लास में ख्याल हमारी हुई है ना, या दो हुई है। यहाँ पर देखिए कि वो इसका क्लास। मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इसी सेम कलर की कैंडल की क्या हुई है, लिक्विडिटी स्वेप हुई है। अब लिक्विडिटी के बारे में पूछो तो लिक्विडिटी को आप क्या समझते हैं, आप कैसे उसको, उसके बारे में जानते हैं, क्या जानते हैं लिक्विडिटी के बारे में। लिक्विडिटी बेसिकली जो मैं समझ रहा हूँ कि वो रिटेल रिटेल ट्रेडर्स को धोखा देना। स्मार्ट सही है, मनी और बिग अपने इंस्टीट्यूट हिसाब से, आके जो है ना। अपने हिसाब से हाँ। सही है, लेकिन लिक्विडिटी इसको नहीं कहते। हाँ,
अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप समझ जाएंगे इमीडिएटली। ओके। गोल्ड की मार्केट में आप गए, ठीक है, गोल्ड। ओके। की मार्केट में आप गए, जहां पर गोल्ड की मार्केट, जहां पर ऐसी प्लेस है ना जहां पर बहुत सारे गोल्ड का ट्रेड होता है, ठीक है, जी। आप उस मार्केट में गए, ना वहां पर बायर है ना सेलर है, इट मीन्स देर इज नो लिक्विडिटी, इट मीन्स देर इज नो लिक्विडिटी। वहां पर सेलर है लेकिन बायर नहीं है, क्या लिक्विडिटी बन सकेगी? नहीं। कैन यू वेट जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट वेट। श्योर श्योर। अभी मैं आपको क्या कहा था? ओके, यस ब्रदर। यहाँ पर देखिए, मैं आपको एक इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा ना, तो फिर आप कहाँ से रिवर्सल होगा कहाँ से नहीं होगा ये आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए, मार्केट में कोई भी ट्रेंड हो या फिर मार्केट में एक रेंज चल रही हो, जैसे कि मैं यहां से आपको, अब अगर आप सेल करना चाहें, यहां पर सेल रिस्की लग रही है, करंट मार्केट के अंदर सेल क्या है, रिस्की है। आप अगर मार्केट में सेल करना चाहेंगे तो कहां से करना चाहेंगे? ऊपर से। ऊपर से। ऐसे दुनिया में कितने लोग देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे? बहुत सारे। बहुत सारे। आप मार्केट के अंदर हो, लेकिन आपने एक रेट तय किया कि मैं यहां से सेल दोबारा करना चाहूंगा, तो अब इतनी देर तक आप मार्केट में बैठेंगे नहीं, डेफिनेटली कोई ना कोई ऑर्डर तो लगा के छोड़ेंगे ना, क्योंकि यहाँ से हम्म, 3 घंटे भी लग सकते हैं, 4 घंटे भी लग सकते हैं, हायर टाइम फ्रेम है तो। ठीक है, यहाँ तक मार्केट पहुंचने के लिए फिर आप क्या डिसाइड करोगे कि मुझे यहाँ पर एक सेल लिमिट का ऑर्डर लगाना चाहिए, कौन सा? सेल लिमिट का। जब सेल लिमिट का आप ऑर्डर इस जगह पे लगाओगे तो आप मार्केट में अवेलेबल नहीं है, रिजल्ट कोई भी आ सकता है ना। यहां से आपने ऑर्डर लगाया, अगर प्राइस आपके अगेंस्ट जाए तो फिर आप डेफिनेटली कोई ना कोई क्या लगाओगे, एक स्टॉप। स्टॉप स्टॉप लॉस। लॉस लगाओगे। सेल लिमिट का ऑर्डर लगाने के बाद क्या लगाएंगे आप? स्टॉप लॉस लगाएंगे, क्योंकि आप अवेलेबल हो या ना हो, अगर इतना लॉस हो तो आप बर्दाश्त कर सकते हो, और फिर आप एक टेक प्रॉफिट लगाओगे अपने हिसाब से। ठीक है, अब ये आपकी सोच है, इसी तरीके से मिलियंस ऑफ ट्रेडर की यही सोच होगी, मिलियंस ऑफ ट्रेडर की। रिटेल ट्रेडर्स की। रिटेल हो कोई भी हो, मतलब ट्रेडर हो जो बाय सेल करना चाहता है, उन सब हाँ। की यही सोच होगी कि भाई प्राइस में डाउन ट्रेंड है, क्योंकि अप ट्रेंड बनाने के लिए अभी बहुत टाइम चाहिए, तो हर एक बंदा यहाँ पे सेल लिमिट का ऑर्डर लगाएगा। अब सेल लिमिट ऑर्डर कौन सा होता है? सेल लिमिट एक पेंडिंग ऑर्डर होता है। ये कौन सा ऑर्डर होता है? एक, पेंडिंग ऑर्डर। क्योंकि ये अभी तक लगा नहीं है ना। इसी तरीके से सेल लिमिट होता है जब बाय बाय करते हैं, तो फिर कौन सा ऑर्डर होता है? बाय बाय लिमिट। बाय। ठीक है, लेकिन मेरी सोच अलग है, मतलब कुछ ऐसे ट्रेडर होंगे जिनकी सोच अलग होगी, वो कहेंगे जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होती ना तब तक मार्केट में अपट्रेंड नहीं बनेगा। जैसे आप क्या कह रहे थे कि डाउन ट्रेंड है तो कंटिन्यू करने के लिए इसी रेजिस्टेंस लेवल पे आएगा, फिर मार्केट यहां से गिरेगी नीचे। लेकिन कुछ ट्रेडर क्या कह रहे हैं कि जब ये लेवल ब्रेक होगी, जैसे ब्रेक होगी, ब्रेक कंफर्म हो जाएगी, मतलब थोड़ा सा यहां से 10 पिप या 15 पिप ऊपर करके यहां पर सब लोग बाय स्टॉप का ऑर्डर लगाएंगे। कौन सा ऑर्डर लगाएंगे? कि ये लेवल ब्रेक होगी तो मैं बाय करना चाहता हूं, क्योंकि अगर ये लेवल ब्रेक हुई तो फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। तो जैसे आपने सेल लिमिट लगाया, बहुत सारे लोगों ने बाय स्टॉप ही लगाया होगा। ठीक है, बाय स्टॉप मतलब ब्रेकआउट के आफ्टर ब्रेकआउट कोई भी ट्रेड करना चाहिए, या फिर करंट प्राइस से ऊपर आप बाय करना चाहते हो कि ये लेवल ब्रेक हो जाए तो। जैसे आपने स्टॉप लॉस लगाया, तो यहाँ पर और कौन स्टॉप लॉस लगाएगा? बाय स्टॉप वाले लगाएंगे, वो थोड़ा सा नीचे करके लगाएंगे, देखेंगे यहाँ पर कहीं चले गए। 10-15 पिप के हिसाब से लगाएंगे, है ना। तो ये उनका एसएल हो गया।
और उनका भी टेक प्रॉफिट होगा, इनका भी टेक प्रॉफिट होगा कहीं ना कहीं यहां पर। तो हर एक लेवल के ऊपर कितने किस्म के आपको ऑर्डर मिले? सेल लिमिट और बाय स्टॉप। तो जब मार्केट इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर किसी भी लेवल के ऊपर प्राइस को ट्रेड करने के लिए आएंगे तो वो क्या करेंगे? वो इन जब यहां तक प्राइस पहुंचेगी तो ये सेल लिमिट जो है, जितने भी सेल लिमिट के ऑर्डर थे वो सब के सब क्या हो जाएंगे? ऑन हो जाएगा। एक्टिव हो जाएंगे। हम्म, 90% लोगों ने स्टॉप लॉस करीब में लगाया होगा, क्योंकि मोस्टली 1:5, 1:6, 1:7 या 1:4 के हिसाब से ट्रेडिंग करते हैं। और कुछ होते हैं रिटेलर जो स्टॉप लॉस नहीं लगाते, लेकिन मोस्टली लगाते हैं। जो भी ट्रेडर होता है वो कम, मतलब कि उसको अगर प्रॉफिटेबल बनना है तो वो स्टॉप लॉस जरूर लगाएगा, ज्यादा लॉस ऐसे ना हो के स्टक हो जाए। तो जैसे प्राइस आएगी तो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर को पता है कि मार्केट में यहां पर सेल लिमिट के ऑर्डर बहुत ज्यादा लगे होंगे। जैसे ही प्राइस क्रॉस करेगी, यहां पर आर्टिफिशियली इसको प्राइस को क्रॉस करके उस जगह तक लेके जाएंगे जहां तक स्टॉप लॉस के ऑर्डर लगे हुए हैं। तो जिन्होंने सेल किया, उन सेल का क्या हुआ? नुकसान हो गया सारा। लॉस हो गया। हाँ, लेकिन जब प्राइस ऊपर की तरफ जा रही थी तो बाय स्टॉप भी तो एक्टिव हो गया ना लोगों का। एक्टिव हो गया। हाँ, अब प्राइस नीचे की तरफ आ गई, स्टॉप लॉस हिट करके प्राइस, बायर अब खुश हो रहे हैं कि अब मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, देन मार्केट नीचे की तरफ आ गई, उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया। राइट। उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया। देन मार्केट मूव कर रही है, अभी अभी ये जो सेलर भी हट गए मार्केट से, बायर स्टॉप भी हट गए। अब प्राइस नीचे की तरफ आई तो कुछ लोग फिर दोबारा एंटर हुए होंगे सेल के लिए, अभी मार्केट सेल के लिए जा रही है, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, जिसकी वजह से देन मार्केट अगेन ऊपर की तरफ चली जाएगी। असल उसको ऊपर ही जाना था, लेकिन ना बाय स्टॉप वाले को जो फर्स्ट एंट्री थी उनको प्रॉफिट करने देना था, ना सेल वालों को प्रॉफिट करने देना था। तो अब क्या होता है कि जब भी प्राइस की लेवल ब्रेक होती है, आपने देखा होगा कि मार्केट उसी के डायरेक्शन में नहीं जाती, कभी कभार जाती है। हम्म, या फिर जो भी रेंज होती है, उस रेंज की जो भी डायरेक्शन ब्रेक होती है फर्स्ट, उसी में मार्केट नहीं जाती, देन नीचे की तरफ आती है, देन ऊपर की तरफ चली जाती है जरूर। लेकिन ऐसे करके जाती है, डायरेक्टली कोई नहीं जाती मार्केट। तो हम जिस एरिया, जिस लेवल के ऊपर बाय स्टॉप और सेल लिमिट के ऑर्डर, या सेल स्टॉप और बाय लिमिट के ऑर्डर देखें, उसको बोलते हैं पेंडिंग ऑर्डर्स। और पेंडिंग ऑर्डर इज इक्वल टू लिक्विडिटी। पेंडिंग ऑर्डर इज इक्वल टू लिक्विडिटी, क्योंकि वहां पर बायर और सेलर के ऑर्डर्स मौजूद होते हैं। तो अब जो वेव्स के अंदर ये सेम कॉन्सेप्ट यूज होगा, तो अगर इसको माइक्रो करें तो ये कैंडल्स के अंदर भी यूज होगा। ठीक है। तो अब मार्केट की मूवमेंट को समझें। जैसे कि यहां से प्राइस की मूवमेंट है, प्राइस ऐसे मूव किया, देन नीचे ब्रेक किया। अब इस सेटअप की लिक्विडिटी स्वेप हुई है कि नहीं हुई? हाँ, ये हाई था और इस हाई की लिक्विडिटी स्वेप किया, एंड देन मार्केट नीचे की तरफ आई। अगर मैं इस लेवल को यहां तक पुश रखूं, कहां तक? यहां तक रखूं, क्या अब कह सकता हूं कि लिक्विडिटी स्वेप हुई है? नहीं। नहीं, क्योंकि इसको फिर स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, है ना। इसको हम्म, स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, इसको फिर नीचे की लेवल को भी ब्रेक करना पड़ेगा। अब आप याद रखो कि एक ऊपर की लेवल ब्रेक हो और एक नीचे की लेवल ब्रेक हो। एक ऊपर की लेवल ब्रेक हुई और एक उसी के साथ ही नीचे की। नीचे की। ये भी एक स्ट्रक्चर था, हाई बनाया तो लिक्विडिटी स्वीप हुई, और नीचे का ये लो था प्राइस की, मार्केट ने इसकी स्ट्रक्चर को ब्रेक किया। अब हमारे पास ये ऑर्डर ब्लॉक है, कौन सा? ये। अब प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक को टेस्ट करेगी, एंड देन मार्केट नीचे की तरफ आएगी। अब यहां पर एक सेटअप है। अब आप बताइए कि इसने इसने स्ट्रक्चर को ब्रेक किया है ना? क्या लिक्विडिटी स्वेप हुई? सुन रहे हैं आप मुझे?
हेलो। जी जी। जी, इसके बारे में मुझे बताएं, इस सेटअप की लिक्विडिटी स्वैप हुई है? नहीं, इसमें नहीं। और यहां पर जो इसने स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, तो फिर मैं इस ऑर्डर ब्लॉक को इग्नोर करूं या इसको मैं ट्रेड कर सकता हूं? मैं इसको इग्नोर करूँ क्योंकि वो लिक्विडिटी ब्रेक हुई नहीं। अब बहुत सारे लोग क्या करेंगे, समझेंगे कि ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है, इसमें इम्बेलेंस भी है, ये काम करेगा। हम्म, बहुत सारे लोग यहां पर सेल लिमिट का ऑर्डर लगाएंगे और उनका नुकसान होगा, और उन्होंने स्टॉप लॉस कहाँ रखा होगा, इस हाई पे रखा होगा, है ना? हम्म, मतलब देखो कि हर कोई लेवल पे ट्रेड करता है ना, कि रेजिस्टेंस पे, ऑर्डर ब्लॉक पे, या सप्लाई डिमांड के लेवल्स के ऊपर, जोन के ऊपर ट्रेड एक्टिव रखता है कि वहां से हो जाए। तो यहां पर तो नहीं हुआ, यहां से मार्केट ऊपर गई, थोड़ा सा ज्यादा एक दो कैंडल ऊपर नीचे होंगी स्ट्रक्चर बनाने के लिए, देन मार्केट ये इसका लिक्विडिटी स्वैप करके देन नीचे की तरफ आएगी। नीचे कैसे आएगी? अब यहां पर मैं आपको एक चीज बताऊं, फोकस कीजिएगा। ये स्ट्रक्चर देखो, इसमें एक स्ट्रक्चर ऊपर का ब्रेक होता है और एक स्ट्रक्चर नीचे का ब्रेक होता है। तो यहां पर एक स्ट्रक्चर ऊपर का ब्रेक हो गया। अब कौन सा स्ट्रक्चर रहता है? नीचे का। अब ये नीचे का स्ट्रक्चर ब्रेक होगा एंड देन मार्केट वापस ऊपर की तरफ जाएगी। अब मार्केट इम्बैलेंस आर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट करेगी, इसके बीच में भी होगा, क्योंकि वेव्स भी बन सकती है, डायरेक्ट एक वेव नहीं बन सकती। यहां पर पॉसिबल है कि यहां पर एक इस तरीके से करके वेव भी बन सकती है, देन ब्रेक हुआ है, देन मार्केट इसको टच करेगी एंड देन मार्केट नीचे की तरफ आएगी। तो ये जैसे स्ट्रक्चर बनते हैं, इससे चार्ट पैटर्न्स बनते हैं। क्या बनते हैं? चार्ट पैटर्न्स। चार्ट पैटर्न्स इनके ऊपर होते हैं, लिक्विडिटी के ऊपर ही बनते हैं, इस तरीके के बनते हैं। तो अब हम अगर देखें कि यहां पर अगर आपको ट्रैप किया जा रहा है, इस जगह पे आपको क्या किया जा रहा है? ट्रैप किया जा रहा है कि मार्केट में एग्जॉशन हो गई है, अब मार्केट को ऊपर की तरफ जाना चाहिए। ऐसा ही ट्रेडर यही समझेगा ना, एक ही सिंपल एक सेटअप को देखेगा कि यार यहां पर ऐसा हुआ और यहां से मार्केट को ऊपर की तरफ जाना चाहिए। पीछे वाले सेटअप की देखी जाए तो क्या इसकी लिक्विडिटी स्वेप हुई है? मार्केट ऐसे करके ऐसे गई है, या मार्केट ऐसे करके ऐसे ऊपर गई है? अब इन दोनों में कौन सा सेटअप हुआ कि इसकी लिक्विडिटी स्वेप नहीं हुई? तो प्राइस ब्रेक मतलब ऊपर कब तक जाएगी? जब इसकी लिक्विडिटी स्वेप नहीं होगी, स्वेप होगी एंड देन मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। तो ये पॉइंट हमें हमेशा देखना होता है कि मार्केट ने कैसा स्ट्रक्चर बनाया। ये देखिए, ये स्ट्रक्चर बना, इसके अंदर लिक्विडिटी स्वाइप हुई? नहीं हुई। देन मार्केट क्या करनी चाहेगी? इसकी लिक्विडिटी स्वाइप होगी। अब एक स्ट्रक्चर ऊपर का ब्रेक हुआ, एक स्ट्रक्चर नीचे का ब्रेक हुआ। अब मार्केट के अंदर ये इंबैलेंस भी है और ये आपका ऑर्डर ब्लॉक भी है। तो मार्केट में अप ट्रेंड कहां तक जाएगा? जो यहां तक लिक्विडिटी। जा सकता है, या इस इंबैलेंस के अंदर, या इस, देखिए अब ब्रेकर ब्लॉक की बात करूं ना, अगर मैं, अगर ब्रेकर ब्लॉक की यहां से लेके यहां तक, ये सब का सब क्या है? ब्रेकर ब्लॉक है। फिर यहां से या तो मार्केट नीचे की तरफ आ जाएगी। इसलिए ये वहां ओ, पे जाके जी, इसलिए वहां पे एक रेड कैंडल है। जी, इसलिए रेड कैंडल है और इसने राउंड नंबर का भी रेस्पेक्ट किया है। एक ब्रेकर ब्लॉक भी है। और ब्रेकर ब्लॉक कैसे होता है? ब्रेकर ब्लॉक का याद रखिएगा, एक स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा और एक स्ट्रक्चर नीचे की तरफ ब्रेकआउट होगा, उस जगह पे ब्रेकर ब्लॉक बनता है। हर जगह पे अगर आप ऐसे देखेंगे, आप सोचेंगे हर जगह पे मैं ब्रेकर ब्लॉक बनाऊं, नहीं, हर जगह पे नहीं होता। मतलब एक ब्रेक ब्रेक हुआ ऊपर की तरफ, यस, एक ब्रेक हुआ नीचे की तरफ, यस, देन मार्केट ऊपर गई, तो आप ऐसे ब्रेकर ब्लॉक बना सकते हैं। मतलब ये अभी हम आगे चल के सीखेंगे इन चीजों को, बाकी वन बाय वन चीजों को देखना होता है ना, कि अभी पहले कैंडलस्टिक को देखें, क्योंकि कैंडलस्टिक पे देख के फिर दूसरे कॉन्सेप्ट को सारे मिला के फिर जब ट्रेड करेंगे, फिर पता चलेगा कि हाँ, अब हम कहाँ से कौन सा टारगेट लेके और किस टारगेट तक हम ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत लॉजिकल है। ठीक है, ये इतना आसान नहीं है जितना आसान समझा जाता है, क्योंकि
हर एक की स्टडी करने का तरीका अलग है। आपने बहुत स्टडी की होगी और आपका आपके जहन में वो चीज नहीं आ रही होगी, और जो मेरे में आ रही है, और जो मैंने स्टडी की है, हो सकता है आपकी ऐसी पॉइंट्स होगी जो मुझे नहीं पता होंगी। समझ रहे हैं? जी जी। तो ये मार्केट इसी तरीके से लॉजिकल है। तो अब यहां से ऑर्डर फ्लो को समझते हैं। कुछ चीजें हैं जो हमें ऑर्डर ब्लॉक, सप्लाई एंड डिमांड, एंड देन स्ट्रक्चर, इसको समझना पड़ेगा। जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो मार्केट का, हम उसको जिगजैग बोलते हैं। वो करेक्शन भी होती है और बेसिक स्ट्रक्चर बनने की स्टार्टिंग भी होती है। इस जिगजैग के अंदर इनिशियली हम चार लेवल्स को देखते हैं, चार डिफरेंट पोजीशंस को देखते हैं। एक पोजीशन हमारे लिए क्या होती है? हाई। एंड देन दूसरी पोजीशन हमारे लिए क्या होती है? लो। एंड देन हम इसको, उस हाई से नीचे है, ये लो से ऊपर है, तो लोअर हाई इसको बोलते हैं। एंड देन इस पॉइंट को हम बोलते हैं लोअर लो। ये हमारे लिए इसके अंदर चार पोजीशन है। ये एक कंफर्म्ड स्ट्रक्चर नहीं है, ये जस्ट बिगिनिंग ऑफ स्ट्रक्चर है। कंफर्म स्ट्रक्चर दूसरे तरीके से बनता है। लेकिन आप इसकी पोजीशन को वाजे कर सकते हो कि क्या आप हाई पॉइंट है, कौन सी लो पॉइंट है, देन लोअर हाई है, एंड देन लोअर लो है। और इसी तरीके से अब ट्रेंड का स्ट्रक्चर रहेगा, ये रहेगा। इस स्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारी बातें हैं। अगर उस बातों के अंदर आप देखें तो एक स्ट्रक्चर है जो सेल की मूवमेंट नीचे की तरफ आई, एंड देन बायर की मूवमेंट ऊपर की तरफ गई। क्या बायर ने सेल की मूवमेंट को कंट्रोल किया? नहीं किया। देन अगेन बायर की मूवमेंट को किसने कंट्रोल किया? सेलर ने कंट्रोल किया। इसी तरीके से ये एक सेल की मूवमेंट है, और पहले बायर की मूवमेंट थी, उस मूवमेंट को सेलर ने कंट्रोल नहीं किया, एंड देन अगेन बायर ने इस मूवमेंट को कंट्रोल किया। तो आप यहां पर बता सकते हैं कि कौन से मूवमेंट में कौन कंट्रोलर है? यहाँ पे तो बायर्स है, सेकंड वाले। सेकंड वाली में बायर्स हैं, राइट। जब मार्केट चलती है, जब ट्रेंड डाउन की तरफ बनता है, तो हर बार डाउन ट्रेंड में कौन कंट्रोल कर रहा होता है मार्केट को? सेलर्स। Sellers. It means price goes down, then moves up, maybe liquidity taken, then moves down. Price goes up, liquidity not taken, then moves down. मैं एक चीज इंटरप्ट कर सकता हूँ? जी। मेरे ऑब्जर्वेशन में मैंने एक चीज नोटिस की है कि लिक्विडिटी लिक्विडिटी टेकन को समझने के लिए मेरे मेरे परसेप्शन से जो मैं समझ रहा हूँ हम्म। कि जब भी लिक्विडिटी हंट होती है, सो इट बिकम्स, इट ब्रेक्स द रिदम। मार्केट में एक रिदम होती है, अप डाउन, लेकिन लिक्विडिटी हंट ब्रेक्स दैट रिदम। जैसे हम्म। कि अब समझो मैं क्या करूँ कि एक जिगजैग जिगजैग कर रहे हैं ना आप, लेकिन हम्म। जिगजैग में एक ब्रेक आ गई है, दैट इज लिक्विडिटी। हम्म। देखिए, लिक्विडिटी तो जो जिसकी बात कर रहे हैं ना, ऑर्डर्स तो हर एक कैंडल के हाई पे भी होते हैं और हर एक कैंडल के लो पे भी होते हैं। आप अगर ग्रीन कैंडल को लोनली देखें, तो ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर भी लिक्विडिटी है और ग्रीन कैंडल के लो के नीचे भी लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी मींस ऑर्डर्स, पेंडिंग ऑर्डर्स, बहुत सारे ऑर्डर्स लगे होंगे। तो जब सेलर्स आते हैं, तो ऐसे करके भी लिक्विडिटी एक कैंडल की स्वेप कर देते हैं कि इसके ऊपर जितने ऑर्डर थे सारे स्वेप हो गए। एंड देन मार्केट एक टारगेट लेके नीचे की तरफ जाती है। वो जा पाती है, कितना जाती है, कितना फिर रिवर्स होती है, वो एक अलग चीज है। स्ट्रक्चर के लिए, क्योंकि ट्रेंड किससे बनता है? स्ट्रक्चर से बनता है। और स्ट्रक्चर, मार्केट की मूवमेंट तब कंप्लीटली होती है जब लिक्विडिटी स्वेप होती जाती है। ठीक है। आप अपने हिसाब से जो लिक्विडिटी को समझते हैं वो बिल्कुल सही होगा, लेकिन यहां पर आप स्ट्रक्चर को देखें, क्योंकि मैं यहां पर यह दिखाना चाह रहा हूं कि आप अगर किसी भी लेवल को ट्रेड करना चाहेंगे, तो राइट लेवल कौन सी है जिसके ऊपर हम वेट करें और उसी लेवल से हम ट्रेड करें। जैसे आपके पास यहां पर लेवल है। अब इस स्ट्रक्चर के हिसाब से जो मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया, मार्केट कहां से रिवर्स होगी? अगर ऊपर जाए तो रिवर्स कहां से होगी मार्केट?
एक रेंज बनाएंगे पहले, लाइक ठीक है, ऊपर जाएंगे फिर। मार्केट आप एक रीजन बनाएगी, मार्केट अगर ऊपर जाना चाहती है तो एक रीजन बनाएगी, वो रेंज बनाएगी, सही है, मैं उसको एग्री करता हूं, ठीक है। और रेंज का कानून क्या रहेगा? पॉइंट ए बी सी। रेंज का कानून रहेगा कि लास्ट लो पॉइंट को चेक कीजिए। कौन सी को? लास्ट लो पॉइंट को चेक कीजिए, दिस इज द लास्ट लो पॉइंट। अब इसी के अंदर एक वेव होगी ना, ये जैसे कि ये वेव है, एंड दिस लास्ट रेंज हाई पॉइंट। अगर मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर पाती, इसी के अंदर रहती है, इट मींस द रेंज इज क्रिएटेड। या फिर मार्केट, जरूरी नहीं है, रेंज के बहुत सारे कानून है, ऐसे है कि मार्केट इसी के अंदर हाफ रेंज बना रही है, नाउ देयर आर टू टचेस, राइट? ऐसे भी हो सकता है, इतनी बड़ी वेव है तो जरूरी नहीं है कि ऊपर तक जाए, इससे नीचे भी आ सकती है, क्योंकि यहां से भी तो लेवल है ना एक, ये वाली। जी जी। तो इसको भी रेस्पेक्ट करके एक रेंज बन सकती है, लेकिन हम कानून समझते हैं कि जो आखिरी वेव का लो होता है जिसको रेंज लो कहते हैं, और आखिरी वेव का जो लो हाई होता है रेंज हाई जो कहते हैं, इसके अंदर अंदर रहती है। इसको पार्शियली रहे वो भी हो सकता है। अब अगर मार्केट ऊपर जाना चाहती है तो क्या करना चाहेगी मार्केट? अगर अच्छा, अगर ऊपर जाना चाहते तो पहले वो सपोर्ट को तोड़ेगा। मार्केट अगर ऊपर नहीं, जाना चाहती है तो सपोर्ट को ब्रेक ऊपर करेगी जाना नीचे। चाहते पहले नहीं, पहले रेजिस्टेंस को तोड़ेगा, वहां से देखो, सेलर्स के नहीं, स्टॉप लॉस एक लेंगे। बात सुन, हाँ सुने, देखो कि हमने कहा था कि अगर पिछले हमने क्लास में जो डिस्कस किया था कि दैट इज अ रेंज, ओके, जिस डायरेक्शन में फर्स्ट ब्रेकआउट होगा मार्केट उस डायरेक्शन में नहीं जाएगी, है ना? हाँ, ये तो ठीक है। तो अगर ऊपर जा रही है तो किस डायरेक्शन में जाना चाहिए पहले इसको? नीचे, पहले नीचे नीचे की जाएगा। तरफ आना चाहिए, ठीक है, ऐसा सिस्टम बनाए कि बाकी नीचे की तरफ आए, एंड देन मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है, ओके। तो अब मार्केट डाउन में है, तो मार्केट को पहले क्या करना पड़ेगा? नीचे की तरफ इसको ब्रेक करना पड़ेगा, सही हो गया। और कभी कभार मार्केट ब्रेक नहीं भी करती, वो क्यों नहीं करती अब वो मैं बाद में स्ट्रक्चर बनाऊंगा, ठीक है। अब मानो कि यहां पर मार्केट ने लिक्विडिटी स्वेप किया, अब हमारे पास एक ये लेवल है, हमारे पास एक ये लेवल है, नंबर वन लेवल, नंबर टू लेवल। आपको क्या लगता है कि कौन सी लेवल को मार्केट को कॉन्सेप्चुअल रिवर्स होना चाहिए? इम्बैलेंस रहा। ओ, लेवल वन, सॉरी। लेवल वन, क्योंकि लेवल टू की लिक्विडिटी स्वेप नहीं हुई, जब ये स्वेप होगी तो ऑटोमेटिकली इस ऑर्डर ब्लॉक तक मार्केट पहुंचेगी, राइट? तो राइट। ऐसे होगा कि अब यहां पर एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया जाएगा, ये वाला। अब मार्केट जिगजैग करते हुए, क्योंकि मार्केट की मूवमेंट ऐसे ही होती है ना, जिगजैग करते हुए कहां तक पहुंच गई मार्केट? इस ऑर्डर ब्लॉक तक पहुंच गई। हम्म। अब उसके बाद मार्केट चाहे तो कंटिन्यू कर सकती है डाउन की तरफ, क्योंकि मार्केट में ऐसे होता है कि अब अगर इसी को रेस्पेक्ट करना है, हो सकता है कि मार्केट इसी लेवल को दोबारा टेस्ट करके इसकी लिक्विडिटी स्वेप करके ऊपर भी जा सकती है, दैट इज पॉसिबल आल्सो, ये भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन मार्केट में ये क्या हो सकता है, मार्केट में पहला हमें जो रिवर्सल मिलेगा वो यहां से, क्योंकि आप देखेंगे जब भी दो लेवल बन रही है समझो कि मार्केट रिवर्स होना चाहती है। जब दो सेम लेवल बनेगी, मतलब कि सिमिलर लोज बनेंगे, तो मार्केट क्या करना चाहेगी? लिक्विडिटी टेक करके ऊपर की तरफ जाएगी। दो मेन हाई बनेंगे, देन मार्केट क्या करेगी? लिक्विडिटी टेक करके मार्केट नीचे की तरफ जाना चाहेगी। तो ये मार्केट स्ट्रक्चर खुद ही बना देगी आपको। अगर डायरेक्ट ब्रेकआउट करती है, मतलब मार्केट कह रहे हैं कि हम इसको रिटेस्ट करके देना, बाकी नीचे की तरफ हम आएंगे, ये खुद स्ट्रक्चर बताता जाएगा कि हम किस तरफ जा रहे हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ये इसी तरीके से बनते हैं मार्केट के। अब यहां पर जो मैं बात करना चाह रहा था वो ये थी कि हम ऐसे देख के समझ सकते हैं ना कि कौन से लेवल से प्राइस को गिरना चाहिए, ऐसे कि एक ये लेवल है, एंड देन एक ये लेवल है, ये ब्रेक होगी और यहां से मार्केट रिवर्स करेगी। ऐसे आपको पहचानना पड़ेगा कि जहां से भी आप ट्रेड करोगे, सेटअप कोई सा भी बने, कैंडलस्टिक वाला आपको सिग्नल कहीं से भी मिले, लेकिन प्राइस कहां से रिवर्स होगी ये आपको स्ट्रक्चर एंड लिक्विडिटी से पता चलेगा। कहने का मतलब यही है, ठीक है, गॉट इट। अब यहां पर एक और आपसे सवाल है,
ये एक स्ट्रक्चर है, मैं इसको बोल रहा हूं कि दिस इज अ हाई मूवमेंट, दिस इज अ लो मूवमेंट। क्या मैं इसको अभी लोअर हाई कह सकता हूं? इस पॉइंट को क्या हम लोअर हाई कह सकते हैं? जी जी। लोअर हाई इज इक्वल टू व्हेन लो ब्रेक, लो, जब लो ब्रेक होगा ना तब लोअर हाई एक्टिव हो जाएगा। अब आप यहां पर देखें कि क्या लो ब्रेक हुआ है? नहीं हुआ। जब तक लो ब्रेक नहीं होगा तब तक लोअर हाई एक्टिव नहीं। नहीं होगा। तो मार्केट में मोस्टली लोग समझते हैं कि अगर यहां से प्राइस ऊपर की तरफ चली जाए और बोलते हैं कि ये लोअर हाई है, तो ये लोअर हाई नहीं है। अब लोअर हाई बनने के लिए क्या क्या कंडीशन है? इस लो को ब्रेक होना पड़ेगा। ओके, ये आपके लिए लो बना, ब्रेक हुआ, एंड अब क्या एक्टिव हो गया आपके लिए? आपके लिए एक्टिव हो गया, दिस इज अ लोअर हाई मूवमेंट। अब यहां से वेव बनाने के लिए आप जब मार्केट में वेव बनाएंगे तो वेव किस तरीके से बनाई जाती है? आपको मैंने पिछली दफा आई थिंक बताया था वेव बनाने का, या नहीं बताया था आपको? हाँ। तो मैं ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट है वेव बनाने के लिए। कुछ लोग समझते हैं कि कम से कम 2 कैंडल हो तो वेव बना लो, कम से कम 3 हो 4 हो तो वेव बनाओ, या फिर इस तरीके से। मैं समझता हूं नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर लास्ट कैंडल आपकी ब्रेक होती है, लास्ट कैंडल जो है ये रेड कैंडल, क्या ये ब्रेक हो गई बाय ग्रीन कैंडल? इसकी ओपन प्राइस ब्रेक हो गई, यस। एंड देन अगर यहां पर आपको अगली दफा एक रेड कैंडल मिलती है और इसके अंदर 3 कैंडल आती हैं, कितनी आती हैं? 3, नॉट मोर देन 3, 3 की बात कर रहा हूं मैं सिर्फ, क्योंकि 4 में फिर मजबूरी में हमें करना पड़ता है। 2 आ जाए या 3 आ जाए, कुछ भी हो जाए, एंड देन सेलर्स कंटिन्यू। ऐसे अगर कंटिन्यू करते हैं एंड देन बायर आते हैं, वो अपने 2 कैंडल के साथ इसको ब्रेक करते हैं ओपन को, एंड देन मार्केट नीचे की तरफ कंटिन्यू करती है। ठीक है, तो अगर इसके अंदर स्ट्रक्चर हम लगाएंगे ना, वो स्ट्रक्चर जरा इस तरीके से होगा कि प्राइस ने लो टू हाई टू लो किया, देन लोअर हाई किया। लोअर हाई में इसलिए इसको कह रहा हूं क्योंकि नीचे का ब्रेक है। अब अगर मैं इसको करके ऐसे कर रहा हूं ना, तो यहां से इस लेवल ने ब्रेक नहीं किया, यहां से इसने ब्रेक नहीं किया, इसको ब्रेक करना चाहिए था, ब्रेक नहीं किया। तो हम क्या करेंगे, इसी को, इस वेव को कंटिन्यू कर लेंगे, दिस इज अ वेव कंप्लीट। और उसके बाद फिर मार्केट यहां पर स्ट्रक्चर बनाए, ब्रेक हुआ है, देन हम ऐसे करेंगे। तो ये हमारे लिए एक पूरी मूवमेंट रहेगी। तो जो भी आप स्ट्रक्चर बनाएंगे वो कैंडलस्टिक का, वो इस लिहाज से बनाएंगे कि आखिरी कैंडल को ब्रेक होना चाहिए। चाहे छोटी कैंडल है तो फिर तो वो एक ही कैंडल उसको ब्रेक कर लेगी, इससे स्ट्रक्चर कंप्लीट बनेगा, आपका सही बनेगा। एंड देन दो स्ट्रक्चर हैं, एक हम जो प्राइस एक्शन का बनाते हैं और एक एडवांस स्ट्रक्चर बनाते हैं। एडवांस स्ट्रक्चर को अगर आप ढूंढेंगे तो बहुत कम मिलता है। वो हर एक बंदा पढ़ा तो देता है कि दिस इज एडवांस स्ट्रक्चर, एसएमसी का स्ट्रक्चर है, ये ही सबसे बेस्ट है। लेकिन वो अगर मार्केट में देखने जाएं तो फिर वो ऐसा हर वक्त नहीं बनता, कभी कभार ही बन रहा होता है मार्केट में। वो कैसे स्ट्रक्चर कहते हैं कि प्राइस में क्या होना चाहिए, अगर प्राइस नीचे की तरफ आ रही है देन इसको, इस लेवल को ब्रेक करना चाहिए बाय विक और बाय बॉडी। एंड देन मार्केट अगर नीचे की तरफ आती है तो दिस विल बी काउंट लो, दिस विल बी काउंट लोअर हाई, एंड दिस विल बी काउंट हाई, एंड दिस विल बी काउंट, क्योंकि ये लो हो गया। अब जैसे मैं यहां पर लिख रहा हूं कि दिस इज हाई, क्योंकि इसने एक वेव को ऊपर की तरफ ब्रेक किया और देन नीचे की तरफ ब्रेक हुआ, ये हमारा लो था। लो कैसे कंफर्म हुआ? जब ये लेवल ब्रेक हुई, लोअर हाई, एंड देन
लोअर लो। अब लोअर लो कब ब्रेक होता है, कब बनता है, जब तक ऊपर का एक जो पहला स्ट्रक्चर होता है वो ब्रेक नहीं होता, तब तक ये इसको कंफर्म नहीं करती। अब जैसे कि यहां पर अगर ऐसे बन गया मार्केट में, इस तरीके से आ गया और देन आ गया, तो इसको लो कोई नहीं मानता। जब ये प्राइस ऊपर की तरफ जाती है और इसको ब्रेक करती है, तो यहां पर क्या मान जाते हैं इसको, दैट्स कंफर्म लो। अब इसने इसको ब्रेक तो किया, लेकिन इसको लोअर हाई कोई भी नहीं मानेगा। लोअर हाई कब तक मानेंगे इसको, जब तक प्राइस इस तरीके से आके इस एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को, इस पॉइंट को ब्रेक नहीं करती। ब्रेक किया, अब यहां पर लोअर हाई हमने मान लिया इसको। तो फिर एसएमसी स्ट्रक्चर वाले हमेशा उसी को लोअर हाई मानते हैं, और उसी लोअर हाई के ऊपर ऑर्डर ब्लॉक वैलिड होता है, क्योंकि इसने इस हाई की लिक्विडिटी स्वेप की है, तो हम सिर्फ इसी को ही टारगेट करेंगे। इसने इस हाई की लिक्विडिटी स्वेप की है, तो हम इसी को ही एक्टिव मानते हैं। तो अगर एसएमसी के स्ट्रक्चर के ऊपर जाते हैं ना, तो एसएमसी के स्ट्रक्चर का हर पॉइंट पिछले पॉइंट की लिक्विडिटी को स्वेप कर रहा होता है, और फिर उसी जगह पे ऑर्डर ब्लॉक जो हमारा होता है, या डिमांड या सप्लाई का एरिया होता है, वो हमारा वैलिड होता है। और हम वैसे अगर हम मानते हैं, तो फिर क्या होता है कि हम हर एक मूवमेंट को बोलते हैं कि दिस वी कैन वर्क, दिस कैन वर्क। इस तरीके से ये रहता है। इस स्ट्रक्चर को आप इस तरीके से देखिएगा और इसकी प्रैक्टिस भी कीजिएगा। नाउ कम टू अनदर पॉइंट ऑफ सपोर्ट। अगर सवाल हो तो पूछ लीजिएगा, मतलब कि जो भी हम टॉपिक कर रहे हो उसी के अंदर कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हो उसी वक्त ही। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन है जो अभी हमने सीखा? नहीं, कंफ्यूजन नहीं, इट्स क्वाइट क्लियर, लेकिन वो मुझे इसको काफी दफा दोहराना आप थोड़ा सा पड़ेगा तेज प्रैक्टिस बोलें, क्योंकि मैं, मतलब। मुझे आवाज थोड़ी कम हाँ, सुनाई दे रही है मैं जी। कह रहा था कि समझ रहा हूँ, बस बहुत प्रैक्टिस चाहिए मुझे जी जी जी, इसको प्रैक्टिस तो इसके लिए दिमाग। बहुत परफेक्ट है, बहुत होगी तभी आप परफेक्ट बनेंगे। अब यहां पर मैं आपको वापस कैंडलस्टिक के ऊपर आ रहा हूँ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, क्योंकि स्ट्रक्चर है, हमें पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को समझना चाहिए, फिर स्ट्रक्चर भी ऑटोमेटिकली हमें क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, ये मूवमेंट है, मैं जो ऑब्जर्वेशन में आपको समझाना चाह रहा हूं, इसको बस एक दफा समझना है। ये बिल्कुल सिंपल है, और उसके बाद फिर आप खुद ही समझ जाएंगे। अब अगर मोर देन टू कैंडल्स, मतलब थ्री कैंडल्स आके किसी एक सपोर्ट के ऊपर क्लोज हो जाए, अगर मोर देन टू कैंडल्स किसी सपोर्ट के ऊपर आके क्लोज हो जाएं, तो मैं समझता हूं कि दिस इज अ मोमेंटम मूवमेंट। ये एक मोमेंटम मूवमेंट है। मोर देन टू कैंडल्स हो या थ्री कैंडल्स हो, इमीडिएटली प्राइस को रिवर्स नहीं करना चाहिए, या हम मतलब कि कोई भी ऐसा बाय का ट्रेड ना करें कि जिससे इमीडिएटली हमें यहां से रिवर्सल का ट्रेड करना पड़े। क्योंकि जब ज्यादा कैंडल्स होती हैं तो प्रेशर भी ज्यादा होता है। फिर होता है क्या है, जब हम ट्रेड करते हैं ना एक कैंडल का, तो वो कैंडल जंप करके ऐसे करके तो आती है और ऐसे करके क्लोज हो जाती है। ये इस तरीके से क्लोज हो जाती है। अब हमने बाय किया तो फिर यहां पर तो लॉस हो गया ना। हम्म, और इस तरीके से अगर ऐसा नहीं होता तो हम बाय करते हैं, तो फिर क्या होता है कि मार्केट ऐसे जंप अप करके नीचे ब्रेक डाउन कर देती है, क्योंकि ऊपर से प्रेशर था, मोमेंटम था। तो आप जब तीन कैंडलस्टिक डायरेक्ट क्लोज हो जाए, इमीडिएटली ट्रेड नहीं करें। इमीडिएटली ट्रेड इस पे नहीं सर। नहीं करें रिवर्सल का। आपको एक कैंडल का वेट करो, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ऐसी कैंडल मिलेगी। अब ये कैंडल एक इंफॉर्मेशन दे रही है, वो मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में समझाऊंगा। देन अगर आप चाहें तो आप बाय करो, मतलब कि इमीडिएटली तीन चार या पांच कैंडल किसी भी सपोर्ट के ऊपर क्लोज हो जाएं कंसेक्यूटिव, तो उस वक्त आपको एक कैंडल का वेट करके अगली कैंडल के ऊपर ट्रेड करेंगे ना, तो वो ज्यादातर चांसेस है कि वो आपकी क्या बनेगी, रिवर्सल की कैंडल विन। बनेगी, विन बनेगी। क्योंकि ऐसा होता है मार्केट में इस तरीके से। ये अगर जंप ना भी लगे ना, तो थोड़ा सा मोस्टली ऐसा भी होता है कि ऐसे इस रेट कैंडल में गैप भी होता है सपोर्ट के क्लोज होने के लिए। आपने देखा होगा कि अक्सर ऐसा थोड़ा सा गैप होता है, छोटा सा ऐसे। ठीक है, तो अगली कैंडल इसी को गैप को फिल करने के लिए बन जाती है, तो हमारा लॉस भी हो जाता है इस तरीके से। तो एक पॉइंट तो आपने ये नोट कर ली। अब हम जो मेन ऑब्जर्वेशन के ऊपर जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो ये है कि आप मोमेंटम के बाद आप वेट करेंगे, आप मार्केट को वॉच करेंगे, भले बायर यहां पर आ जाए, आपने ट्रेड नहीं करना। तो बायर जरूर जो
फर्स्ट टाइम आता है ना किसी मोमेंटम मूवमेंट के बाद, दैट बायर इज मोस्टली इज अ काउंटर मूवमेंट। ये बायर की क्या मूवमेंट होती है? काउंटर। काउंटर मूवमेंट। काउंटर मूवमेंट कभी भी ट्रेंड नहीं बनाती। अब इस काउंटर मूवमेंट को अगर देखा जाए तो जैसे मोमेंटम था जो काउंटर था, तो अब सेलर मोस्टली एक रिएक्शन देगा जिसको हम लास्ट एफर्ट के नाम से यूज करते हैं। क्योंकि सेलर की मूवमेंट स्ट्रांग थी, बायर ने उनको काउंटर किया, तो सेलर जरूर रिएक्शन करेगा। अब सेलर जब रिएक्शन करेगा वो इस सपोर्ट के ऊपर क्लोज होने की कोशिश करेगा या इस सपोर्ट को ब्रेक करने की कोशिश करेगा। अब यहां पर इससे क्या साबित हुआ कि सेलर ने क्या किया? ब्रेक किया। तो सेलर ने इन्फॉर्म क्या किया कि स्टिल वी आर इन अ पोजीशन, अभी तक हम हमारी सप्लाई कम नहीं हुई। तो यहां पर आपको कंट्रोलर कौन मिलेगा? सेलर ही कंट्रोलर मिलेगा। एक कंडीशन ये होगी। दूसरी कंडीशन क्या बनेगी कि ये जो सेलर है, जब यहां से ये ओपन हुआ एंड देन इस लेवल की तरफ आया, तो यहां पर आपको ऑब्जर्वेशन मिलेगी कि अप एंड डाउन रिजेक्शंस होंगी, प्राइस नीचे की तरफ आएगी एंड फाइनली प्राइस रिजेक्ट होके सपोर्ट के ऊपर क्लोज हो क्लोज। जाए। अब इस जो ये वाली जो रिजेक्शन थी, इससे आपको क्या इंफॉर्मेशन मिली? हु ट्राई टू ब्रेक द सपोर्ट? सेलर्स। Sellers tried to break the support but unable to break the support. सपोर्ट। अब अगर मैं ऑप्शन दूं, the sellers are very in a momentum, can I reverse? Sellers fail to break the support, can I reverse? कौन सा ऑप्शन इजी रहेगा? सेकंड वाला ऑप्शन, क्योंकि उसमें वो इन्वर्टेड हैमर भी है हम्म। एंड दे वर अनएबल टू ब्रेक, सो यस। तो मतलब कि जो इजी, लेस रिस्की रहेगा वो सेकंड वाला सेटअप रहेगा, राइट? जी जी जी। तो अगर हम सेकंड वाला सेटअप को ट्रेड करते हैं तो ये रिवर्सल का ट्रेड मोस्टली हमारा सक्सेसफुल रहेगा एज कंपेयर टू फर्स्ट ट्रेड। क्योंकि राइट। फर्स्ट ट्रेड के अंदर ज्यादा प्रेशर होता है, तो यहां पर एक डोजी टाइप ऑफ कैंडल, वीक टाइप ऑफ कैंडल या सेलर की एक वीक कैंडल जरूर आ जाती है, जिसकी वजह से फिर हमारा ट्रेड लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और फिर जब ट्रेडर का एक ट्रेड लॉस हो जाता है तो फिर दूसरा ट्रेड वो ऑब्जर्व करता है कि विन हो तो फिर मैं कंटिन्यू करूं, और वो अब दूसरा ट्रेड देखता है तो विन हो जाता है, और फिर जब वो कंटिन्यू करना चाहता है तो फिर उसका रिजल्ट ही अलग हो जाता है। तो हम मार्केट में ऑब्जर्व करके ट्रेड करें। तो यहां पर अब इस कंडीशन के अंदर आपको यह पता चला कि मुझे ट्रेड कौन सी पोजीशन पे लेना चाहिए, ये क्लियर पॉइंट हो गई। अब दूसरी पॉइंट पे आते हैं। पहली मूवमेंट के ऊपर भी एक पैटर्न बना, दूसरी मूवमेंट के ऊपर भी एक पैटर्न बना, बुलिश का पैटर्न बना। जो पहली मूवमेंट पे बना तो उस वक्त बायर का रोल क्या था? बायर ने किसको कंट्रोल काउंटर किया था? सेलर को काउंटर किया था। एंड दूसरे वाले पोजीशन में सेलर फेल हो चुके ब्रेकआउट करने में, और फिर पैटर्न बना। तो इस कंडीशन के अंदर मैं समझता हूं कि फर्स्ट पैटर्न इज अ काउंटर पैटर्न एंड सेकंड पैटर्न इज अ मोटिव पैटर्न। क्योंकि अब बायर की मूवमेंट बढ़ेगी तो ये कौन सा पैटर्न कहलाएगा? मोटिव। मोटिव पैटर्न। मोटिव पैटर्न। अब मैं आपको एक पॉइंट दूसरी हाईलाइट करना चाहता हूं। कैंडल्स के अंदर दो किस्म की मैनिपुलेशन होती है। कैंडल्स के अंदर कितने किस्म की मैनिपुलेशन होती है? दो किस्म। दो किस्म की। हमने पिछले टाइम पे पढ़ा था कि जब कोई भी एक बड़ी सी कैंडल बनती है, ये इसका रेंज हाई हुआ एंड ये इसका रेंज लो हुआ। लो। ओके। तो अब हमने देखा कि प्राइस, देखें कि जिस डायरेक्शन में ब्रेक करेगी हम उसके अगेंस्ट जाएंगे, ऐसा ही है। हाँ। ऐसा हमने पढ़ा था कि देखें कि इसके कौन से डायरेक्शन में प्राइस ब्रेक करती है, और हमने देखा कि प्राइस वापस ऊपर की तरफ जाती है और ऊपर के डायरेक्शन में ब्रेक किया। तो हम अब क्या माइंड बनाएंगे कि मार्केट को किस तरफ जाना चाहिए? ऊपर।
ऊपर ब्रेकआउट फर्स्ट हुआ तो फर्स्ट वो फेक होगा, मैनिपुलेशन होगी, देन हाँ। मार्केट किस तरफ जाएगी? राइट। नीचे। डाउन की तरफ जाएगी। सही हो गया। अब अगर यहां पर मैं मूवमेंट बनाता हूं तो आप मुझे बोलेंगे कि सर, योर मूवमेंट एज पर योर कंडीशन यू टोल्ड दैट द मार्केट फर्स्ट ब्रेकआउट जिस तरफ होगा तो मार्केट उसको कंटिन्यू नहीं करेगी, उसके अगेंस्ट जाएगी, लेकिन यहां पर कंटिन्यू क्यों कर रही है? राइट। वेरी राइट। है क्या ना सवाल? हाँ, हाँ। देखें, पहले तो फर्स्ट कैंडल के आप हाई एंड लो को आप चेक कीजिए। ठीक है। अब यहां पर एक स्ट्रक्चर की थोड़ी सी गलती है, मैं उसको दुरुस्त करता हूं। ठीक है, अब ये हो गया सही। अब देखें कि बाय विक कौन सा डायरेक्शन ब्रेक हुआ? नीचे की तरफ। नीचे की तरफ। तो हम्म। तीन चीजें सिमिलर हैं जो इस स्ट्रक्चर को मानते हैं ना मैनिपुलेशन के अंदर। कितनी चीजें सिमिलर हैं? तीन चीजें सिमिलर हैं। ये देखिए, एक के सेलर की कैंडल है, इसको बायर ने ऐसे स्वैप किया। सेलर की कैंडल को बायर ने, अगली कैंडल बायर की बनी और बायर ने सेलर के नीचे वाले विक को क्या कर दिया? स्वैप कर दिया, राइट। हम्म। इसको हम सीआरटी कहते हैं, कैंडलस्टिक रेंज थ्योरी के अंदर आता है, और हमारा नेक्स्ट टारगेट होता है कि प्राइस कहां तक जाएगी? इस हाई तक जाएगी। दूसरा तरीका था कि एक ऐसी कैंडल बनेगी, बाय कैंडल आप देखेंगे कि ये ब्रेकआउट होगा एंड मार्केट उसको कंटिन्यू नहीं करेगी, रिवर्स हो जाएगी। और कभी कभार दो तीन कैंडल बनती है, नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक मार्केट जाती है, फिर कंटिन्यू, फिर रिवर्स करती है, ऐसा भी होता है। तीसरा तरीका यह होता है कि एक रेंज के अंदर आपको एक ऐसा विक मिलेगा जो इस पूरे एरिया के नीचे से लिक्विडिटी को क्या करता है? ग्रैब करता है, स्वेप करता है। तो यहां पर क्या हुआ? इस कैंडल ने क्या किया आपको? यहां से ये सारा स्वेप कर दिया, लाइक अ ब्रेकआउट। तो ये स्वेप हो चुका, जिसकी वजह से मार्केट क्या कर रही है? कंटिन्यू कर रही है ऊपर जाने के लिए। क्यों? क्योंकि ये एक 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 कैंडल की मूवमेंट है, बड़े स्ट्रक्चर की मूवमेंट नहीं है। बड़े स्ट्रक्चर के हिसाब से मेरे आई थिंक मे बी कि यहां पर एक रेंज बन रही हो। क्या बन रहा हो? एक रेंज बन रहा हो। फिर उस रेंज का ब्रेकआउट किस तरफ होता है वो फिर हम उस तरीके से देखेंगे। अभी हम कैंडल्स के ऊपर बात कर रहे हैं, तो कैंडल का स्ट्रक्चर इस तरीके से रहेगा। अब यहां पर एक और पॉइंट मैं ऐड करूंगा। ये एक सपोर्ट है, इस सपोर्ट पे ये मूवमेंट आई और इसको ब्रेकआउट कर दिया। तो इस ब्रेकआउट का सोर्स क्या रहेगा? जहाँ से शुरू किया, ऊपर से। दैट इज अ ऊपर से। सोर्स, दैट इज अ सोर्स। ठीक है। अगर सोर्स ने ब्रेकआउट किया, आप इसको क्या मानेंगे? स्ट्रांग मूवमेंट, वीक मूवमेंट? स्ट्रॉन्ग। एक यहां से सोर्स आता है और इस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश करता है, नहीं कर पाता, तो इसको ब्रेक करने का भी सोर्स तो यहां से स्टार्ट हुआ ना, है ना? हाँ। अगर आपको मैं बोलूं कि कौन से सोर्स से आप दोबारा सेल करना चाहेंगे इन दोनों में से? सेकंड वाला। सेकंड वाला ब्रेक नहीं कर पाया, वो सोर्स तो उसमें इतना दम ही नहीं है कि ब्रेकआउट कर सके। लेकिन वो रिवर्स करके फिर जाएगा ना वो, तो उसी पॉइंट पे। यहां पर आपके यहां से वापस आएगा। हाँ। वहां से फिर हम सेल मैं तो ये करेंगे। कहूंगा कि भाई अगर इस सोर्स में दम होता तो फर्स्ट टाइम ही ब्रेकआउट करता ना, क्यों नहीं किया? हाँ, तो मैं ये तो इस बात भी सोर्स पे ठीक है। मैं ट्रेड करूंगा ही नहीं, क्योंकि इसके ऊपर, इसके आसरे पे अगर मैं इन्वेस्टमेंट करूं, ये तो यहां से डुबा देगा मुझे, क्योंकि ये खुद ही इनको ब्रेकआउट नहीं कर पाए थे, है ना? हाँ। अब जैसे कि यहां पर एक स्ट्रक्चर है, मैं इसको ट्रेड क्यों करना चाहूंगा इस लेवल को? क्योंकि मैं ये देखूंगा कि यार इसने पिछले लो को भी ब्रेक किया था इस मूवमेंट ने, तो अब अगर मार्केट ऊपर हम्म। आए तो इसको जरूर जो है ना मार्केट रिवर्स करेगी, है ना? हाँ। हाँ। और यहां पर ऐसे बोलूं कि यार यहां पर इन्होंने बहुत कोशिश की सपोर्ट को ब्रेक करने के लिए, की कर ही नहीं पाए, अब मैं इस लेवल पे ट्रेड करूं, पता नहीं मार्केट इसको ब्रेक करे, डाउट होएगा। तो मार्केट यहां पर ब्रेक नीचे आने के बजाय मार्केट यहां से कहां चली जाएगी? ऊपर। ऊपर। अब दूसरे सोर्स से मदद लेगी, ये वाला सोर्स है ना, मार्केट यहां पर जाके फिर आके ब्रेकआउट करेगी। तो मार्केट का एक सोर्स फेल होगा, मार्केट पिछले सोर्स पे जाएगी, पिछला सोर्स फेल होगा, मार्केट उससे भी पिछले सोर्स पे जाएगी। तो आपने मोस्टली आपने क्या देखा होता है, मैं आपको बताऊं। अब आपको एक ये पुराना हाई मिला, है ना?
बहुत पुराना हाँ, हाई। हमेशा लोगों का टारगेट पुराना हाई क्यों होता है? तो मार्केट इतना डाउन ट्रेंड बना के आई है, तो लाजमी कुछ हुआ ऐसा होगा कि यहां से मार्केट ने इसको ब्रेक नहीं कर पाई होगी, है ना? फिर यहां से भी ट्राई किया होगा, नहीं कर पाई होगी, यहां से भी ट्राई किया होगा, नहीं कर पाई होगी। हम फाइनल क्या कहते हैं, यहां से जरूर मार्केट पे डाउन ट्रेंड बनाएगी, और फिर यहां से जरूर और आएगी मार्केट नीचे ब्रेकआउट करने के लिए। इसलिए ठीक हम है, सबसे टॉप में तो ब्लॉक ऑर्डर भी है। ऑर्डर ब्लॉक तो हर जगह पे होंगे। यहां पर क्या होगा, यहां पर वहाँ पॉइंट पे ऑफ लिक्विडिटी इंटरेस्ट हंट होगा। हो चुकी है। हाँ, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, राइट? राइट। क्योंकि जहां से ट्रेंड स्टार्ट होता है तो वहां से पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है, एंड देन मार्केट कंटिन्यू सोर्सेज बना रही होती है। सही है। तो हम्म, कॉन्सेप्ट क्या है कि मार्केट का एक सोर्स फेल होता है तो मार्केट फिर कौन से सोर्स से कंटिन्यू करना चाहती है? फिर उसके पिछले सोर्स से कंटिन्यू करना चाहती है। तो अब यहां से ये जो सोर्स था, ये सोर्स क्या हो गया? ये फेल हो गया ब्रेकआउट करने में। इस सोर्स की रेजिस्टेंस से कोई भी ट्रेड नहीं करेगा, तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा कि ये वाली रेजिस्टेंस आपकी फेल हो जाएगी। ये वाली रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी आपकी? yeah, चाहे इसके अंदर कैंडल क्लोज हो जाए, चाहे इसको कैंडल ब्रेक करे, यहां से लेवल से अब रिएक्शन नहीं आएगा। इस रिएक्शन ना आने का क्या रीजन है? क्योंकि इन सेलर्स ने नीचे की लेवल को ब्रेक क्यों नहीं किया? इन सेलर्स ने नीचे की लेवल को ब्रेक क्यों नहीं किया? हम्म, अब इसके एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूं। ये मोस्टली ऐसा होगा, 100% की बात मैं नहीं कर रहा, क्योंकि हर जगह पे कंडीशन होगी। अब देखिए, ये लेवल क्या हो गई? ब्रेक हो गई। अब ऐसे सोचो कि अगर ब्रेक किया तो कंटिन्यू क्यों नहीं किया, है ना? अगर ब्रेक किया तो आपने कंटिन्यू क्यों नहीं किया? हम्म, करना चाहिए था ना बायर को। हम्म, नहीं किया, तो मार्केट में कौन आया? सेलर आया। सही हो गया। तो फिर अगर मैं सेलर से पूछूं कि भाई इस सपोर्ट के ऊपर जब आप लोग क्लोज हो गए तो फिर बायर क्यों नहीं आया दोबारा? बायर से पूछूं ना। हम्म। हम्म, इस सपोर्ट पे क्यों नहीं आए आप लोग? तो इन्होंने हम्म, क्या कहा कि भाई हमने यहां से ऊपर ब्रेकआउट करने की कोशिश की, हम ब्रेकआउट करने में फेल हो गए, तो जिसकी वजह से सेलर को हमने छोड़ा। अब इस सपोर्ट से कोई भी आना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि अगर इसमें दम होता इस सपोर्ट में तो मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जाती। तो फिर बायर कहेंगे कि हम दूसरे सोर्स से आएंगे। क्या करेंगे हम दूसरे सोर्स दूसरे से। सोर्स से आएंगे। फिर दूसरे सोर्स से आए तो फिर मार्केट में अप ट्रेंड बनाया वापस। हाँ, तो ये सोर्स इसलिए फेल हुआ क्योंकि यहां से बायर रेडी नहीं है, या फिर इसके पास एक और भी रीजन है। क्या? बायर कहते हैं कि दिस इज नॉट अ डिस्काउंट प्राइस। दिस इज नॉट अ डिस्काउंट प्राइस। हमें सस्ता चाहिए। तो हो सकता है वो सस्ता उनके लिए ये लग रहा हो, तो यहां से मार्केट ऊपर की तरफ लेके गए। लेकिन आप इस कॉन्सेप्ट को ऐसे समझेंगे कि मैं जी। मैं एक पॉइंट कहना हम्म। चाह रहा था हम्म। कि जिस जहाँ से उन लोगों ने रिवर्स की है बायर्स, तो अगर हम पीछे जाएं चार्ट्स चार्ट्स के पीछे, लाइक जी, प्रीवियस प्राइस पॉइंट पे जाए, तो इट कुड बी पॉसिबल कि वहाँ पे पहले क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी हो सकता है। बिल्कुल पॉइंट ऑफ, अब और जैसे यहां पर चार्ट नहीं है, आप बहुत पीछे जाएंगे तो आपको जरूर मिलेगा चार्ज, ठीक है ना? हाँ, आपको हाँ, बहुत पीछे जाएंगे तो आपको मिलेगा, लेकिन हम बहुत पीछे जाएंगे तो बहुत देर हो जाएगी। right, फिर हम क्या करेंगे कि मैंने क्या कहा कि भाई हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि अब तीन कैंडलस्टिक अगर यहां पर रिएक्शन दे रही है तो दिस इज द मोमेंटम, दिस इज द काउंटर, है ना? हम्म, हम दूसरी मूवमेंट के ऊपर ट्रेड कर लेंगे। दूसरी मूवमेंट इसके करीब आती है, ये वाली, है ना? तो वहां से, क्योंकि देखो कि अगर आप पहली मूवमेंट पे आप ट्रेड करते तो आप डेफिनेटली आप इन तीन कैंडल के विक को देख के, इन सेलर की मूवमेंट को देख के कंफ्यूज हो जाते, फॉरेक्स में ट्रेड क्लोज करने की कोशिश करते, राइट, है ना? क्योंकि अगर हम यहां राइट, सपोर्ट करते क्योंकि हमारा टारगेट अचीव नहीं होता, हम कहते यार इतनी रिजेक्शन, इतना स्ट्रांग डाउन ट्रेंड, रिजेक्शन, सेलर की दो कैंडल 2 घंटे से नीचे आ रही मार्केट। नहीं यार, इससे अच्छा है कि यहां पर बाय किया है, नुकसान करने से बेहतर है थोड़ा सा प्रॉफिट करके निकल जाओ, छोड़ दो मार्केट को। फिर क्या होता राइट। फिर?
जब देखा अरे मार्केट तो और ऊपर जाएगी, फिर अब आप 3 4 5 घंटे के बाद या फिर छोड़ देते मार्केट को, फिर बाद में आके देखते, अब देखते कि यार मैंने क्या कर दिया, ऐसे तो नहीं होना चाहिए था, नहीं यही करना हो चाहिए था मुझे, ये है ना। यही होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि हम अर्ली एंट्री कर लेते हैं, हम अर्ली एंट्री कर देते हैं, ये रीजन होता है। अब जैसे आपने यहां पर बाय किया था, ओके, क्या जरूरी नहीं है कि सारा स्ट्रक्चर सही बने, सब कुछ हर चीज एज पर द लॉ हो, उसके बावजूद भी लॉस हो सकता है, उसके बावजूद भी बाकी चाहे तो नहीं जा सकती, इट्स पॉसिबल। ठीक है। अब देखें कि जैसे कि आपने यहां पर बाय किया, फॉर एग्जांपल मार्केट ने इसको ब्रेकआउट किया अप एंड देन ब्रेकआउट किया डाउन, दिस इज अ कंडीशन फॉर यू, डोंट गो अपसाइड। क्योंकि बायर जब एक ब्रेकआउट करता है तो उसको 55% चांसेस होते हैं कि दैट कैन बी ट्रू, दैट कैन बी 45% दैट कैन बी फेक। ऐसे ही होता है कि जो भी ब्रेकआउट होगा उसकी 55% चांसेस क्या होते हैं, इट कैन बी ट्रू, एंड 45% चांस क्या होते हैं, इट कैन बी फॉल्स। तो जब एक ब्रेकआउट ऊपर हुआ एंड देन नीचे हो गया, अब व्हाट वी कैन से 100% फेक ब्रेकआउट। देन जो दूसरा ब्रेकआउट हुआ उसके पास क्या ऑप्शन बचे, क्या फिर वापस 55 एंड 45 बचा, नहीं, अब इसके पास मोर देन 90% बचा, क्योंकि इसको एक और इंफॉर्मेशन मिल गई कि पिछला ब्रेकआउट फेल हुआ है। पिछला ब्रेकआउट क्या हुआ है, फेल हुआ है। तो मेरी परसेंटेज बढ़ गई, तो मैं मार्केट में ट्रेंड भी इसके फेवर में एंड देन कंटिन्यू करने का भी इसके फेवर में। तो लिक्विडिटी स्वेप का भी ऐसे ही मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है कि अगर मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आ रही होती है, ऐसे ब्रेकआउट किया तो बाहर के ऊपर जाना चाहिए था, नहीं हुआ, कंफर्म हो गया कि नीचे की तरफ जाएगी, तो हम इसको लिक्विडिटी स्वेप का नाम दे देते हैं। हकीकत में वो ब्रेकआउट होता है, वो फेल हो जाता है एंड फिर मार्केट अपने डायरेक्शन को कंटिन्यू करती है। लेकिन वो कहते हैं ना कि थोड़ा सा नया नाम देंगे तो फिर लोग अट्रैक्ट होंगे ना। ठीक है। मैं तो कहता हूँ ये सारा प्रोजेक्शन है, बस नाम दिए हुए हैं और कुछ भी नहीं है। तो राइट। यहां पर ये बात हुई। अब एक ऐसा सेटअप दिखाऊं जहां पर एक ही लेवल के ऊपर इन्होंने प्रॉब्लम किया है, कंसोलिडेशन भी बन सकती है मार्केट की। ये देखिए, ये वही कॉन्सेप्ट है ना कि अगर पीछे से सपोर्ट होती है और आप पहला ट्रेड बाय का करते तो क्या होता, फिर ये है ना, ये वाली कैंडल, हाँ, ये कहना चाह रहा था, है ना, कि अगर पहला ट्रेड इमीडिएटली रिवर्स करने का करते तो ऐसा ऐसा बन जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो फिर जब बायर फेल भी हो गया, यहां पर आप देखा कि सेलर अनेबल टू ब्रेक देयर ओन वीक एंड देन बायर आ भी गया, उसके बावजूद मार्केट क्यों आई, क्योंकि दिस वाज अ मोमेंटम मूवमेंट, दिस वाज अ काउंटर। मार्केट को ऊपर की तरफ जाना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको इसको मार्केट को मोटे मूवमेंट बनाने के लिए पीछे नीचे आएगा, और नीचे आएगा तो डबल बॉटम बनेगा ना, क्योंकि चार्ट पैटर्न भी तो बनाना है ना मार्केट के अंदर। हाँ, तो डबल बॉटम भी बना। तो अब ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया ना, ये असल में डबल बॉटम का कॉन्सेप्ट है कि ये लो ब्रेक नहीं हुआ तो बायर के माइंड में क्या गया होगा, तो एक कॉन्सेप्ट बन गया कि भाई डबल बॉटम है। लेकिन डबल बॉटम लोग कैसे यूज करते हैं, वो जस्ट वो ऐसे वेव्स को देखते हैं, देन वो ये समझते हैं कि ये ब्रेकआउट होगा, फिर मार्केट टेस्ट करेगी, देन वी विल गो फॉर बाय। वो सिर्फ ऐसे स्ट्रक्चर को देखते हैं और वो स्ट्रक्चर ब्रेक को देखते हैं, देन उसको बाय करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसा है कि यहां पर ब्रेक क्यों नहीं हुआ, ये कोई भी नहीं समझता इस बात को, सिर्फ बस डबल बॉटम के इसी कॉन्सेप्ट को समझ के कहते हैं कि हमें डबल बॉटम क्लियर हो गया, ये तो गोरो के थ्योरीज पे चलता है है जो ना। आप कह रहे हैं। हाँ। तो लोग इस तरीके से ही डबल बॉटम को लेते हैं कि भाई डबल बॉटम बन जाएगा, फिर ब्रेक होगा, फिर रिटेस्ट करेगा, फिर हम उसको बाय करेंगे। लेकिन हम्म, इसका स्ट्रक्चर क्यों बना, इसके ऊपर कोई फोकस नहीं करता। तो हम जैसे मैंने बताया, तो पहली लेग क्या होती है, मोमेंटम लेग होती है। देन मैं इसको काउंटर समझता हूं, देन प्राइस नीचे आती है, इसको ब्रेक करने की कोशिश करती है, ब्रेक करता तो कभी भी डबल बॉटम ना बनता। हम्म, फिर इससे ब्रेक अनेबल टू ब्रेक हो गया, तो हमें यह पता चला सेलर्स आर फेल्ड एंड देन मार्केट ऊपर की तरफ जाती है। तो अब जो पहला हम लेवल था उस पर ट्रेड नहीं करते, दूसरे पे ट्रेड करते, तो हमें यहां पर
ट्रेड मिल गया, ऊपर मार्केट गई। अब जैसे कि ये मैंने अच्छा, लेवल का बात, जी जी। मुझे सवाल ये था कि ये पहले मैं ट्राई की है, आपके जो वीडियोस देखे हैं उसके बाद मैंने ये वाला ट्राई की है, लेकिन मेरी कंफ्यूजन ये होता था कि कब इसको अप्लाई करना पड़ता है, लाइक मोटिव, न्यू मोटिव का ये जो थ्योरी है। हाँ तो अब अब अभी के एक्सप्लेनेशन के बाद मुझे जो समझ में आ रहा है कि दिस इज मोर लाइक ए मिनी रेंज। जी, अगर हम 1 मिनट कैंडल टाइम फ्रेम में जाए तो दिस इज लाइक ए मिनी रेंज, सो आई हैव टू मिनी लुक आउट रेंज, फॉर मिनी रेंजेस। जी, ओके। ये मिनी रेंज ही है बिल्कुल। और वो भी कॉन्सेप्ट हमारा अभी जहन में रखेंगे कि वो जो थर्ड कैंडल ब्रेकआउट करती है एक कैंडल को, तो मार्केट रिवर्स करती है ना, वो भी हाँ। हम साथ में रखेंगे कॉन्सेप्ट। तो आपने देखा कि मार्केट ने क्या किया, यहां पर ब्रेकआउट किया, थर्ड कैंडल ने ब्रेकआउट किया ना, हम्म। तो जिसकी वजह से ओ हाँ मार्केट को हाँ। रिवर्स अपोजिट आना चाहिए था। अपोजिट आई तो कंटिन्यू नहीं कर सकी, तो फिर मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी, है ना। Yeah, तो आपने एक रिवर्सल का ट्रेड करके आप चाहिए कि आपको 5 मिनट का ट्रेड करना चाहिए, कितना, 5 मिनट 5 मिनट मतलब एक्सपायर, क्योंकि मार्केट को अब ऊपर की तरफ ही जाना है। और आपने जाइए। ये भी कॉन्सेप्ट देखा साथ में, क्या आपने ऐड किया कि यह फेक ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हुआ है ना। हाँ। एंड देन आपका पैटर्न रिवर्स भी हुआ, कंफर्म हो गया कि बायर आ गया, मतलब आ रहा है, बायर आना चाहता है। देन आप इसको 5 मिनट के लिए ट्रेड कर सकते हो कि मार्केट यहां से 5 मिनट के लिए चली जाएगी। अब ये वाली जो रिएक्शन है, जो मेन मेन जो आपके पॉइंट पे जो रेजिस्टेंस लेवल है, इसका आप रिएक्शन यहां पर देखिए, ब्रेकआउट के दौरान। अब यहां पर एक चीज है कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो क्या है, क्योंकि जब कोई कॉन्सेप्ट हम अपने स्टूडेंट्स को बताते हैं तो वो स्टूडेंट समझते हैं कि सर आपने कहा कि ये लेवल काम नहीं करेगी, देखो कि इस लेवल के अंदर कैंडल क्लोज हो गई, मैंने बाय का ट्रेड किया लेकिन देखो कि बाय नहीं हुई और यहां पर सेल हो गई। ठीक है, कि आपने कहा कि ये वाली लेवल क्या है, सोर्स काम नहीं करेगा, तो इसके अंदर भी कैंडल क्लोज हो गई, मैं फिर भी बाय का ट्रेड किया और बाय का ट्रेड नहीं हुआ। ये कॉन्सेप्ट यहां तक नहीं है, अभी इसको पूरा उन्होंने समझा नहीं, आधा समझा, और इसको रिवर्सल का या कंटिन्यूएशन का यहां पर ट्रेड करना शुरू हो गया। अब इस बात को पूरा समझिएगा, ठीक है। जैसे हमने कहा कि ये सोर्स क्या है, यहां पर ब्रेकआउट नहीं कर पाया, तो नेक्स्ट टाइम इस सोर्स से कोई इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहेगा, ठीक है। तो क्या होगा, जब एक लेवल होती है, जब तक प्राइस इसके ऊपर है तो ये क्या कहलाती है, सपोर्ट। और जब इसको प्राइस ब्रेक करती है तो क्या कहलाती है, सेम लेवल, रेजिस्टेंस। 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 अब आप देखिए, ये सोर्स किसके लिए फेल हुआ है, सेलर के लिए, राइट। ये सेम सोर्स किसके लिए काम करेगा, अपोजिट पार्टी के लिए काम करेगा। इट मींस दैट जब ऐसा होगा, जब यहां पर नीचे सेलर फेल होगा, तो ये वाली जो लेवल होगी, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट बनेगी, क्या बनेगी, रेजिस्टेंस बिकम, दैट विल बिकम श्योर शॉट। तो रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट पे आपको ट्रेड करना है, आपको इसके अंदर ट्रेड नहीं करना। देखो कि एक पता है कि यहां पर एक कुआं है, अब उसकी गहराई 1 फुट की है या फिर 10 फुट की है, वो एक अलग बात है। हमें अगर एक बात का पता है कि रेजिस्टेंस है, भले काम नहीं करती, लेकिन 100% तो ये नहीं कहा जा सकता ना कि ये काम करेगी या नहीं करेगी। ये एक कॉन्सेप्ट है, मानना है कि एक अंडरस्टैंडिंग है कि भाई सेलर जब ब्रेकआउट करने में फेल हो जाते हैं तो वो दोबारा अपनी लेवल से आना नहीं चाहते। अगर एक कैंडल आई, ऐसा तो नहीं कि उन्होंने ट्रेंड कंटिन्यू कर लिया, ट्रेंड तो कंटिन्यू नहीं किया ना, आना नहीं चाहते मतलब कि कंटिन्यू नहीं करना चाहते। तो कभी एक कैंडल इसके अंदर क्लोज होगी, मार्केट कंटिन्यू कर जाएगी, कभी इसके अंदर एक कैंडल आएगी, मतलब रिवर्सल नहीं होगा। रिवर्सल वो होता है जो डायरेक्शन चेंज होकर मार्केट नीचे की तरफ आए, बट डायरेक्शन क्या है, वही है। तो आपने इसको क्या यूज करना है,
पहला आपने ये तो आपने परफेक्ट ट्रेड यूज करना है और इस पैटर्न को यूज करना है, वो भी आपका ट्रेड विन हो जाएगा मोस्टली। देन आपको वेट करना है कि ये क्या बन जाए, रेजिस्टेंस बिकम क्या बन जाए, सपोर्ट बन जाए। देन सपोर्ट पे आपको ट्रेड करना है अगर आपको यहां पर रिटेस्ट मिलता है तो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो रिटेस्ट नहीं है। यहां पर रिटेस्ट यहां पर नहीं आया ना अभी, यहां पर रिटेस्ट आया ही नहीं क्योंकि प्राइस ने फिर दूसरी सपोर्ट बना के उसी को रिटेस्ट किया, इस पे नहीं आया। तो जब भी आएगा तो ये वाला लेवल एक्टिव रहेगी हमारे लिए। ठीक है, यहां पर देखिए अब ये वाली जो पॉइंट है ये हमारे लिए सपोर्ट है। अब हम इस सपोर्ट को कैसे मानते हैं, इस सपोर्ट को मोस्टली ऐसा होता है कि एक ही कैंडल इसको ब्रेकअप करती है, एक ही कैंडल इसको ब्रेकअप करती है। लेकिन इसने एक कैंडल ब्रेकअप नहीं किया, यहां पर भी दो कैंडल नीचे की तरफ आई और यहां पर भी दो कैंडल ऊपर की तरफ गई। अगर यहां एक कैंडल नीचे ब्रेक करती और एक कैंडल ऊपर ब्रेक करती तो आपको एक ट्रेड मिल सकता था यहां पर बाय का, एक आपको ट्रेड मिल सकता था बाय का। ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ कि प्राइस ने क्या बनाया, इस सपोर्ट को हु अनेबल टू कंटिन्यू आफ्टर ब्रेक इवन, कौन फेल हो गया, सेलर, राइट। जब सेलर फेल हो गया, आप जवाब नहीं दे रहे, हेलो, सेलर्स फेल हो गया। हाँ, आप कहीं और बिजी सेलर्स हैं क्या फेल। काम में? नहीं नहीं, मैं देख रहा हूँ, आपको आवाज नहीं आ रहा, मैं कह रहा था कि सेलर्स अच्छा, फेल हुए। ठीक है, सेलर फेल हो गए, इट मींस इट विल बी कंसीडर्ड द सेलर्स आर फेल्ड। ठीक है, राइट। देन रेजिस्टेंस बिकम क्या बन जाएगा, रेजिस्टेंस विल बिकम सपोर्ट। और वो आपके लिए काम करेगा। यहां पर सेलर्स फेल हो गए, अगर यहां पर डायरेक्ट ब्रेकआउट होता है तो आप ट्रेड कर सकते थे। देन अब आपको यहां पर 5 मिनट के लिए ट्रेड करना है। हर बार जहां पर भी आप ट्रेड करें वहां पर जब तक कंफर्मेशन ना मिले आपको तब तक आप ट्रेड नहीं कर सकते। आपको ट्रेड देखना पड़ेगा कि यहां पर वो वाली कंडीशन बैठती है तो हम ट्रेड करें। अब जैसे कि आपने देखा होगा कि ये कैंडल जब नीचे क्लोज हुई है इसने नीचे वाले लेवल को टच नहीं किया। अगर ये रेड कैंडल नीचे वाले लेवल को टच करती तो ग्रीन कैंडल बनने की चांसेस थे। जब ये बीच में गैप रह जाए और अनेबल टू टच करे तो याद रखिए कि मार्केट में ज्यादातर चांसेस हैं कैंडल कंटिन्यू करेंगे। वो हो सकता है कि फेक ब्रेकआउट हो जाए मार्केट में, लेकिन कैंडल एक कैंडल जरूर कंटिन्यू करती है। अगर कोई भी ऐसी लेवल हो उस लेवल के अंदर ग्रीन कैंडल क्लोज हो जाए, ऊपर के लेवल को टच नहीं किया, देन मार्केट नीड्स टू कंटिन्यू मोस्टली। ठीक है ब्रदर, आज के लिए तो यहां तक है, फिर इसी टॉपिक को कल कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। जहां तक आज किया तो हाँ इसको आप देख लीजिए, थोड़ा सा इसको स्ट्रक्चर को देखिएगा, स्ट्रक्चर को, और फिर आगे इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में इसी को ही कंटिन्यू करेंगे क्योंकि ये सेम टॉपिक 2 से 3 दिन चलेगा लगातार। ठीक है, अच्छा, ठीक है, ठीक है। ओके। परफेक्ट। थैंक यू ब्रदर। थैंक यू।